Hello guys and girls. So right now we are going to start with where we left off in the previous session. We are having the fourth session of Maharashtra related GK today. Okay? So most of these things जो कि मैंने आपको already बता चुका है कि how they are divided, कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, हर एक पैराग्राफ में हमने वो भी डिस्कस किया है. So now by the fourth session I hope you have a good idea of questions किस टाइप के आ सकते हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड प्रीडोमिनेंटली आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट, which one is Maharashtra's oldest and largest national park? Let me just take up the highlighter. Yeah, so it's the तड़ोबा नेशनल पार्क जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है. तो टोटल 3 नेशनल पार्क्स में महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट टाइगर है. दो 3 आर, एक यही है तड़ोबा नेशनल पार्क, देन एक इज मेलघाट जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड द थर्ड इज पेंच. ठीक है. तो उन्हीं 3 में से ये एक है विच इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र. कहां पे है ये? और ये है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट, विच वन इज रिकग्नाइज्ड एज स्टेट ट्री इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में स्टेट ट्री किसको माना जाता है? तो इट्स मैंगो ट्री. अगेन हमने इससे रिलेटेड पढ़ा था कि मैंगो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किस जगह पाया जाता है, या कौन सी एक जगह है विच इज फेमस फॉर मैंगोज इन महाराष्ट्र. सो इट्स रत्नागिरी. सुना होगा बहुत सारे लोगों ने रत्नागिरी के आम या रत्नागिरी मैंगोज, दे आर क्वाइट फेमस. तो मैंगो ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र. और ये कहाँ पाए जाते हैं? रत्नागिरी में. ऐसे रिलेट कर करके इफ यू ट्राई एंड रिमेंबर इट विल बी वेरी इजी. ठीक है, पूरा स्टोरी बना के. It has been chosen as an official image for that specific state. For Maharashtra state, mango is chosen as the state tree of geographical area. Who is regarded as the architect of modern Maharashtra? So it's Mr. Yashwantrao Chavan. He is regarded as the architect of modern Maharashtra. He was popularly known as the leader of common people. He advocated social democracy in his speeches and articles and was instrumental. He was very important basically in establishing cooperatives in Maharashtra for किन के betterment के लिए या किन के growth के लिए और development के लिए, for the betterment of farmers. He is generally regarded as the architect of modern Maharashtra. Okay, Mr. Yashwantrao Chavan. For which novel Vishnu Sakharam Kandekar won the Gyanpith Award? So it was for his book which is famously known as Yayati. So basically Yayati was a mythological Hindu king जो कि एक्चुअली में उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं होता है. इवन जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी होती है उन्होंने भी ज़्यादा नहीं सुना होता है. उन्हीं के ऊपर ये नॉवेल लिखी थी. किसने? मिस्टर विष्णु सखाराम खांडेकर ने. ययाति, ही वॉज अ किंग. ठीक है, हिंदू किंग, माइथोलॉजिकल, महाभारत के टाइम पे. तो बहुत ही लंबी स्टोरी है. बेसिकली मोरालिटी और इमोरालिटी पे ये बुक लिखी गई थी. इट वाज अ वेरी फेमस बुक. काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश भी हुई थी. और उसी बुक के लिए या उसी नॉवेल के लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, जो कि इज़ अ वेरी हाई, वन ऑफ द हाइएस्ट अवार्ड्स इन लिटरेचर. ओके, कौन से ईयर में? 1974 में दिया गया था ये. He was the first Marathi author to win the prestigious Gyanpith Award. ये हम ऑलरेडी पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं. So what did he win it for? For Yayati. Okay, the name of his novel was Yayati. Who wrote the book Stri Purush Tulna? So it was written by Tarabai Shinde. She wrote the book Stri Purush Tulna. The literary work is a critique of upper caste patriarchy and gender and caste system in the 19th century in India. The material is also considered the first modern feminist text of India. मतलब feminist text तो काफ़ी सारे आए, but अगर एक तरीके से देखा जाए, maybe it was not her intention. उस टाइम पे ये word भी बहुत ज़्यादा prevalent नहीं था, but अगर उनका intention देखा जाए कि what actually the text talks about, so it could be considered the first actual modern feminist text of India. What was it? Stri Purush Tulna, and who was it written by? Tarabai Shinde. Okay, she was a very famous personality even then. Even she was even criticized क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा आवाज़ उठाना against patriarchy was not in vogue. So she was criticized as well, but again she was very famous. Who started enacting the mythological plays in Maharashtra?
So it was Mr. Vishnudas Bhave. He was the one who started enacting the mythological plays in Maharashtra. Vishnudas Bhave came in Mumbai in 1853, and in the beginning he staged his Khel Akhyan and plays in the Vada of Shri Vishwanath Shimpi in the Girgaon locality of the city. ठीक है, मुंबई की ही एक लोकेलिटी है. द स्टोरीज ऑफ हिज प्लेज वर रूटेड इन संस्कृत माइथोलॉजिकल एंड religious literature. Next, which one was honored with the first president's silver medal for best feature film? Best feature film के लिए प्रेसिडेंट्स का एक सिल्वर मेडल दिया जाता है. वो किनको दिया गया था या कौन सी मूवी को? सो इट वाज गिवन टू मिस्टर महात्मा फूले. He was honored with President's Silver Medal for Best Feature Film in Marathi. Atre, the name of the movie was Atre. The 1954 film Mahatma Phule, based on life of a Maharashtrian social reformer, Jyotiba Phule. Or the full name is Jyotiba Govindrao Phule. He was a social reformer. उनकी ही life के ऊपर ये movie बनाई गई थी. The name of the movie was Atre. ठीक है? Next, Anandibai Joshi obtained medical degree from Women's College of, so she obtained medical degree from the Women's College of Pennsylvania in 1886. ठीक है? She was the first woman from their respective countries जिनने ये वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर एक डिग्री ली थी. 1886 बहुत ज़्यादा टाइम पहले. ठीक है, मोर देन 1.5 ऑफ अ सेंचुरी पहले. तो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विमेन अपने कंट्री से जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर ये डिग्री ली थी. कहाँ से? Women's Medical College of Pennsylvania. During Quit India movement, in which of the following districts a parallel government was formed? तो एक parallel government form की गई थी जब Quit India movement एकदम जोरों शोरों से चल रहा था एक डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ से ही parallel government start हुई थी. मतलब पैरेलल गवर्नमेंट मतलब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, बट साथ ही साथ अगर हम अपनी खुद की कोई गवर्नमेंट भी चला रहे हैं या कोई दूसरे लोग अपनी खुद की एक अलग गवर्नमेंट चला रहे हैं जिसको वो अपना अथॉरिटी मानते हैं, तो इट्स पैरेलल गवर्नमेंट. तो ये कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी? इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. हु हैड क्रिएटेड डेजिग्नेशन सेना खास खेल? सो इट वॉज दिस डेजिग्नेशन वॉज क्रिएटेड बाय राजा राम द फर्स्ट. और ये सेना खास खेल का जो डेजिग्नेशन था या जो इसका पद था, पोस्ट थी, इसका बेसिकली मतलब था कमांडर ऑफ द आर्मीज ऑफ द स्टेट. ठीक है, लिटरल मीनिंग अगर हम देखें. एंड इट वाज क्रिएटेड बाय राजा राम द फर्स्ट. राजा राम का मतलब होता है ऑफ कोर्स राजा राम, किंग ऑफ द किंग्स. एंड इट वॉज अ टाइटल, मतलब ये उनका एक्चुअल नाम नहीं था, उनको बोला जाता था. जैसे अकबर वॉज अ टाइटल, इट वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम, उसको टाइटल दिया गया था. ऐसे ही राजा राम एक टाइटल था जो कि होलकर महाराजाज के ऊपर कॉन्फर किया गया था, उनको बोला जाता था. ठीक है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्वालियर स्टेट ऑफ सिंधियाज? सो इट वॉज राणोजी राव सिंधिया. राणोजी राव सिंधिया वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्वालियर स्टेट ऑफ सिंधिया. अभी भी सिंधियाज वहीं पे होते हैं, ग्वालियर में ही रहते हैं. एंड ही वॉज एक्चुअली, राणोजी सिंधिया जो थे, ही वॉज अ पर्सनल सर्वेंट ऑफ पेशवा बाजीराव द फर्स्ट. मतलब जो बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव है ना, दैट्स एक्चुअली बाजीराव द फर्स्ट. तो ऐसे बाजीराव सेकंड भी था, जिनकी आखिरी रीन थी पेशवा, एज अ पेशवा. उनके रीन के टाइम पे ही या फिर उनके टाइम पर ही पेशवा का जो टाइटल था, पद था, वो हटा दिया गया था ब्रिटिश ने. ठीक है. So that was Bajirao the second, but Bajirao the first के servant थे ये. Next, which one of the earliest dynasty to rule Maharashtra? So it is Satvahana dynasty. Satvahana dynasty was the earliest dynasty to rule Maharashtra. ठीक है. And कब से कब तक थे ये? 4th century to 4th and 3rd century CE. BCE. So BCE is before Common Era. सो अगर आपको ऐसे इन जनरल समझना है तो जैसे AD होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, वो CE बोलते हैं, कॉमन एरा. और BC जो होता है बिफोर क्राइस्ट, उसको BCE बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा. मतलब इन ऐसे सिमिलर टाइमलाइन ही फॉलो करते हैं वो, बस ये थोड़ा सेक्युलर वे ऑफ रेफरिंग टू द कैलेंडर है. अराउंड 230 BCE इट वॉज टेकन ओवर बाय सतवाहना डायनेस्टी हु रूल्ड द रीजन फॉर अराउंड 400 years. ओके.
Which one city was founded in 1702 by the Gond king Bhakt Buland Shah of Devgarh? So it was Nagpur city which was founded. Nagpur city found की थी 1702 में. गोंड का जो किंग थे उनका नाम क्या था? भक्त बुलंद शाह. कहाँ से थे? और वो देवगढ़ से. तो नागपुर सिटी वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय हिम. ओके. और क्या 12 कुछ नॉन डिस्क्रिप्ट हैमलेट्स ऑफ राजपुर बरसा रीजन को, तो हैमलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली एरियाज जो गांव से भी थोड़े छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. तो विलेजेस जो होते हैं उनसे और छोटे जो रीजन्स होते हैं उनको हैमलेट्स बोला जाता था. ठीक है. उन 12 रीजन्स को कंबाइन करके नागपुर सिटी फॉर्म किया गया था. विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो इट्स रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. ओके. It has the longest coastline. It is situated in the western coast of India, and it has north-south length of around 180 kilometer and average east-west length extension of about 64 kilometers. Next, who was the first Marathi writer to win Gyanpith Award? ये हम already पढ़ चुके हैं, Mr. V.S. Khandekar. Okay, किसके लिए जीते थे ये? His novel's name was Yayati. Which act in 1960 given the creation of the state of basically which act was responsible for the creation of state of Maharashtra and Gujarat? तो it was Bombay Reorganization Act of 1960. ये हम already पढ़ चुके हैं. बॉम्बे स्टेट एग्जिस्ट करता था, उसको बाइफरकेट करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया. तो 1960 में एक बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था. उस एक्ट के थ्रू ये बाइफरकेशन किया गया लिंगुअल बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे. ठीक है. सो इट वॉज कॉल्ड बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब वापस से ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वॉज डिजाइन बाय, अभी हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले क्या बुलाया जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस. बाद में फिर नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया. तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को डिजाइन किसने किया था? इट वॉज डिजाइन बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस. ठीक है. ये टर्मिनस 10 साल तक बना था, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. और स्टार्ट कब हुआ था बनना? 1878 में. 1878 में स्टार्ट हुआ और फिर 10 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था. ठीक है. और हाई विक्टोरियन गॉथिक डिजाइन, ये भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स. और क्यों? क्योंकि गॉथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर है इसका, विच इज वेरी यूनिक. ठीक है. Next, Lonar Lake of Maharashtra was created by, it was actually created by a meteorite. Meteorite जो आसमान से आते हैं ना, स्पेस से, वो आके यहाँ पे धस गए और वहाँ गड्ढा हो गया और फिर धीरे धीरे it got filled with water and that's how the Lonar Lake जो कि महाराष्ट्र में है, it got created. That's why it has also been notified as a national geo heritage monument. ठीक है. It's a saline lake, मतलब salt water lake है वो, fresh water lake नहीं है. Next, who had published the first dictionary of Marathi in Devanagari script? पहली डिक्शनरी मराठी की किन्होंने पब्लिश की थी? It was Mr. William Carey. He published the first dictionary of Marathi in Devanagari script. It was written during his time in India. It aimed to help European visitors. जो basically European visitors आते थे business करने के लिए, यहाँ पे उनको मराठी तो आती नहीं थी, तो उनके लिए ये डिक्शनरी उनके टाइम पे लिखी गई थी. किसके टाइम पे? मिस्टर विलियम कैरी. ओके. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र? जब महाराष्ट्र अलग स्टेट एज अ स्टेट फॉर्म हो गया 1960 के बाद, तब लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? इट वाज मिस्टर S.L. सिलाम. ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली 1960 में, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म हो गया था उसके बाद. ठीक है. Which one philosopher, poet and writer was also teacher of छत्रपति शिवाजी? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उनको क्या बोला जाता था? समर्थ रामदास, या उनको संत रामदास भी बोला जाता था. He was also the religious and spiritual teacher of Shivaji. He was a huge हनुमान and राम भक्त. ठीक है. So what was his name? समर्थ रामदास, and he was famously referred to as संत रामदास या फिर रामदास स्वामी. Who is also known as the second founder of Maratha state? It's Balaji Vishwanath. The second founder of Maratha state, it's Balaji Vishwanath. Okay.
Balaji Vishwanath assisted a young Maratha emperor Sahu to consolidate his grip on a kingdom that had been rocked by civil war and persistently intruded on by Mughals under Aurangzeb. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, तो ही उनको ऐसे रेफर किया जाता है, ही वॉज एक्ट एज इफ ही वॉज द सेकेंड फाउंडर. नेक्स्ट, भावरथ दीपिका, अ कमेंट्री ऑन भगवद गीता. ये किन्होंने लिखी थी? सो इट वॉज एक्चुअली रिटन बाय संत ध्यानेश्वर एंड इट्स कमेंडेबल बिकॉज एक्चुअली ही डाइड at 21 years of age. तो जब उनने ये कमेंट्री लिखी थी, he was only in his teen. He was a teenager जब उनने भगवद गीता पे ये पूरी कमेंट्री लिखी थी. Okay, so his name was Sant Dhyaneshwar. Next, the salient terms of the Treaty of Salbai concluded in 1782 AD, that is after the death of Christ, between Poona Darbar and the English, was that treaty basically किस चीज़ पे थी, किस बात पर treaty हुई थी. तो द सेलियंट टर्म्स क्या थे उसके बेसिकली? तो वो ये थे कि जो सालसेट था इट वाज गिवन टू ब्रिटेन. ब्रिटेन को सालसेट जो था एक आइलैंड मुंबई के ही कोस्ट पे, वो हैंड ओवर किया गया था ब्रिटेन को इस ट्रीटी के अंडर. द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइन बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मराठास ने हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि किन से ली थी, पोर्चुगीज से पहले टेक ओवर किया था, फिर ये इस ट्रीटी के अंडर ब्रिटिश को हैंड ओवर किया था. ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन डैश एंड शिवाजी. सो इट वॉज एक्चुअली साइंड बिटवीन राजा जय सिंह एंड शिवाजी. व्हाट्स द नेम ऑफ द ट्रीटी? इट्स ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ओके, ही वॉज एक्चुअली द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी या मुगल एम्पायर. And Shivaji didn't want to hand it over or didn't want to sign the treaty. He was actually forced to sign the agreement because वो जो पुरंदर का फोर्ट था वो ऑलरेडी जय सिंह हड़प चुके थे. So he was forced to sign the treaty. Which one film was honored with the first president silver medal? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, महात्मा फूले की ये फिल्म थी. What was the name? आत्रे. And it was written on ज्योतिबा फूले, who was a huge Maharashtrian social reformer. उनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी. ओके, Karla caves were constructed by, so Karla caves were constructed by Nahapana. This cave was constructed between 50 to 70 CE Common Era and 120 CE, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये caves बनाई गई थी during the reign, मतलब rule of Western Satraps ruler Nahapana, who recorded the dedication of the cave in an inscription. एक लिख के dedication of the caves को इन्होंने record भी किया था. Dash wrote at length about the economic exploitation in his work Poverty and Un-British Rule in India. उन्होंने बहुत ज़्यादा economic exploit जो किया जाता है, exploitation जो था अपनी बुक में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा था. Who was he? He was दादाभाई नावरोजी. He wrote at length about economic exploitation in his work Poverty and Un-British Rule in India. His book Poverty and Un-British Rule in India brought attention to the draining of India's wealth, कि कैसे इंडिया की वेल्थ यहाँ इंडिया से निकाल के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के कॉफर्स में या तिजोरियों में भरी जा रही है. तो इंडिया वॉज बीइंग ड्रेन्ड, इसके बारे में उन्होंने अपने बुक में लिखा था. ठीक है, जिससे पहली बार इस चीज़ पे द अटेंशन ऑफ द पीपल वॉज ड्रॉन. The Maratha Navy in the 18th century was developed by, so the Maratha Navy in the 18th century was developed by the Angryas. The first keel of Maratha naval vessel was laid down in a creek near Kalyan और किस टाइम पे, किस ईयर में? 1654 में. Next, who was the Mukasa system? What was the Mukasa system in the administration of शिवाजी? तो शिवाजी के टाइम पे बहुत सारे नए सिस्टम, नए पद उन्होंने निकाले थे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली अच्छा रूल चले उस चीज़ के लिए. तो ऐसे ही एक मुकासा सिस्टम भी था. तो उस मुकासा सिस्टम के अंडर क्या होता था, जो जागीर्स थी वो ऑफिसर्स को दी जाती थी. मतलब बेसिकली एक एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड आर्मी चलाने के लिए जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे उनको कैश या ऐसे गोल्ड सिल्वर में पे किया जाता था, बेसिकली कैश में ही. बट जो चीफ थे, है ना, आर्मी मिलिट्री के चीफ थे जो,
उनको जागीर्स में पे किया जाता था। जागीर मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया उनको असाइन कर दिया जाएगा और उनको ये राइट दे दिया जाएगा कि आप इस एरिया के लोगों से जो महसूल ले रहे हैं, जो बेसिकली टैक्स ले रहे हैं, वो आप खुद इंजॉय कर सकते हैं, उसको कहते हैं जागीर। ठीक है, तो दिस वाज द मोकासा सिस्टम। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? इट्स मिस्टर वसंतराव नाईक। Mr. Vasantrao Naik is the longest serving chief minister of Maharashtra, who was in office from December 1963 to February 1975 for more than 11 years. He was also the first and only chief minister to complete his full term of 5 years till Devendra Fadnavis matched it. ठीक है? Next, who assassinated W.C. Rand, the plague commissioner of Pune in 1897? तो मिस्टर W.C. रैंड वो एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे द बबून प्लेग ऐसे कुछ करके था, वो फैल गया था, मतलब एक टाइप की डिजीज जो थी वो फैल गई थी। तो ब्रिटिश ने इनको असाइन किया और एक और सिविल सर्वेंट थे, उनको और इनको असाइन किया पूरा काम कि यू हैव टू कीप अ चेक कि ये और ज़्यादा डिजीज ना फैले अमंग पीपल। तो ये क्या करते थे? दे यूज टू फोर्सफुली एंटर पीपल्स हाउसेस एंड स्ट्रिप देम डाउन, इवन विमेन। उनके कपड़े उतार के उनको चेक करते थे ज़बरदस्ती, और बहुत सारी जगह डिस्ट्रॉय भी करते थे, लोगों की घर प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते थे, इवन टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस को भी डिस्ट्रॉय करते थे। तो इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। इसलिए जो छापेकर ब्रदर्स थे, there were two brothers, they were known as Chapekar brothers, they killed Mr. W.C. Rand. ठीक है? And their name was Damodar Hari Chapekar and Balakrishna Hari Chapekar. उन्होंने assassinate किया था। ठीक है? Which of the following regional division of Maharashtra falls under the rain shadow region? Rain shadow region क्या होता है? जब बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, तो वो जो रेन वाले क्लाउड होते हैं, बादल जो होते हैं, उनको उस तरफ जाने से रोक देते हैं, तो सारी बारिश इसी तरफ हो जाती है और उस तरफ डेजर्ट जैसा एक एरिया क्रिएट हो जाता है, उसको रेन शैडो रीजन कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा रीजनल डिवीजन ऐसा है जो कि महाराष्ट्र में रेन शैडो रीजन है? तो महाराष्ट्र स्टेट कंप्राइजेस ऑफ 4 रीजन्स, मोटा मोटा फ्रॉम द कोस्ट इनवर्ड, और वो क्या क्या है? कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा एंड विदर्भा। एंड मोर देन 30% ऑफ द स्टेट जो है वो रेन शैडो रीजन के अंडर फॉल करता है। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड was Mr. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे. He was the first ever person to receive महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। कब दिया था? और ये 1996 में। ओके, नेक्स्ट, who had bestowed Jyotirao Phule with the title of Mahatma? तो it was मिस्टर विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर, जिन्होंने ज्योतिराव फूले को महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है, Which governor of Bombay approved the building of the Great Sea Wall to prevent flooding of low, जो नीचे नीचे के एरियाज होते हैं ना, जिनका सी लेवल के पास के एरियाज होते थे, वो फ्लड हो जाते थे बहुत ज़्यादा, तो एक सी वॉल बनाई गई। तो उसको बनाने का इंस्ट्रक्शन किस गवर्नर ने दिया था? किस गवर्नर ऑफ बॉम्बे ने? इट वाज गवर्नर विलियम हॉर्नबी या हॉर्नबाय। ही वाज द वन हु अप्रूव्ड द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट सी वॉल, जिससे लो लाइंग एरियाज जो थे बॉम्बे के वो फ्लड ना हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स आर इन महाराष्ट्र? सो देयर आर टोटल 4 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, एसोसिएशन स्टेडियम फर्स्ट, सेकेंड इज ब्रैबर्न स्टेडियम, थर्ड इज वानखेड़े एंड फोर्थ इज जिमखाना ग्राउंड। सो देयर आर टोटल 4 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स इन Maharashtra. When was the third battle of Panipat fought between Maratha Empire and the invading Afghan king या Afghan army? So it was fought in 1761 between the Maratha Empire and the invading Afghan army. The result was that Marathas actually lost the third battle of Panipat and their जो उनका अधिकार था पंजाब के रीजन के ऊपर, that also they lost, and the जो सतलज रिवर निकलती थी ना, उसका नॉर्थ का जो पंजाब वाला रीजन था, दैट दे लॉस्ट टू अब्दाली।
When was शनिवार वाड़ा built? तो शनिवार वाड़ा जिनने बाजीराव मस्तानी देखी होगी उसमें पूरा जो सारी शूटिंग वगैरह होती है, मतलब जो पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे काशीबाई रहती हैं और इनफैक्ट सब बाजीराव खुद भी रहते हैं, दैट शनिवार वाड़ा. जो लोग पुणे में रहते हैं उनको पता होगा, अब तो खैर बचा नहीं है, वहाँ आग लग गई थी तो इट ऑल गॉट डिस्ट्रॉयड. तो वो बिल्ड कब हुआ था? इट वॉज बिल्ट इन 1732 and it was the great seat of Peshwas of Maratha until 1818. ठीक है? When was छत्रपति शिवाजी टर्मिनस completed? कब complete हुआ था? 10 साल तक built हुआ था, ये हम देख ही चुके हैं. It started in 1878 में उसका construction start हुआ था, 10 साल तक चला था, तो 1888 तक construction चला था इसका. ठीक है? When did the Radio Club of Bombay make the first ever broadcast in India? So it was made in June 1923. Radio Club of Bombay, one of the first clubs जो था इंडिया का, वो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट उन्होंने कब किया? 1923 में. एंड कौन थे वो? द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी केम इनटू बीइंग 23rd July 1927 में, एंड ओनली टू फेस लिक्विडेशन लेस देन 3 years later. ठीक है, 3 साल में फिर दिवालिया निकल गया और पूरे एसेट्स वेसेट्स बेच दिए गए. व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया कंप्लीटेड? तो इट वाज पहले तो कंस्ट्रक्टेड बाय जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज विटेट. एंड सैंक्शन कब हुआ था? 1914 में. एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1924 में. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वाज द गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन मुंबई? दैट इज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन फाउंडेड. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कब फाउंड की गई थी? इट वॉज फाउंडेड या एस्टैब्लिश्ड इन 1930 एंड इट वॉज द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन मुंबई उस टाइम पे. When was Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport opened for the public? So it was opened for the public in the year 1942 and it was the second busiest airport in the country उस टाइम पे. ठीक है. When was the University of Mumbai established? ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. It was founded या established on 18th of July 1857. और किन्होंने फाउंडिंग स्टोन किसने ले डाउन किया था? मिस्टर या डॉक्टर जॉन विल्सन. उसी टाइम पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी का भी फाउंडिंग स्टोन ले डाउन किया गया था. ठीक है. When was the महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट्स पास्ड? इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. 1971 में था. ऐसे बहुत ही कम स्टेट्स थे जिनमें पहले से ही लोकायुक्त या उप लोकायुक्त एक्ट्स ऑलरेडी थे एंड महाराष्ट्र वाज वन ऑफ देम. तो ये एक्ट्स 1971 में ही महाराष्ट्र में पास हो गए थे. नेक्स्ट, व्हेन वाज द महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन फॉर्म्ड? सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1963 एंड it is affiliated with the All India Chess Foundation, Federation. ठीक है. Next, when was the Bombay Reorganization Act signed? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. 1960 में Bombay Reorganization Act साइन हुआ था और फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात दो अलग अलग बाइफरकेट करके फॉर्म किए गए थे. When did the first assembly election take place in महाराष्ट्र? पहले असेंबली के इलेक्शंस कब हुए थे महाराष्ट्र में? अगेन 1960 में ही. जब स्टेट बना था तभी हुए थे फर्स्ट असेंबली के इलेक्शंस. ठीक है. इन दिस इलेक्शन मिस्टर यशवंतराव चव्हाण वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड सयाजी सिलाम वॉज द स्पीकर. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, व्हेन वॉज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी established? So the Savitribai Phule Pune University was established on 10th of February 1949. अंडर कौन से एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया था? पूना यूनिवर्सिटी एक्ट के अंडर. ठीक है, जो कि बॉम्बे लेजिस्लेशन ने उस टाइम पे पास किया था. इन द सेम ईयर मिस्टर या डॉक्टर M.R. जयकर assumed office as the first vice chancellor of the university. Okay. नेक्स्ट, व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? जो हम ऑलरेडी 3 नेशनल पार्क्स डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है महाराष्ट्र में. तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1st of April 1973 में. ओके.
The then Union Minister Karan Singh launched India's first tiger project from CTR's Dikhala forest range. Next, when was the National Stock Exchange of India established? NSE जिसको हम बोलते हैं National Stock Exchange of India, ये कब establish हुआ था? It was established in the year 1992 as the first demat account या demat electronic exchange in the country, dematerialize जिसको हम बोलते हैं, तो it was the first one, ठीक है, National Stock Exchange. Next, when was the Maharashtra Bhushan the highest? हर स्टेट का मैंने बताया था अपना अपना सिविलियन अवार्ड्स होता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का, तो महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट सिविलियंस मतलब हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग, वो अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो स्टेट्स ऑल्दो कंट्री भी अवार्ड देता है, भारत रत्न के बारे में हमने पढ़ा था, स्टेट्स अपना पर्टिकुलर भी अवार्ड्स देते हैं. ऐसे ही महाराष्ट्र स्टेट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज महाराष्ट्र भूषण. सो व्हेन वाज महाराष्ट्र भूषण the highest civilian award presented by the government of Maharashtra पहली बार? So it was the first time the award was given in 1996. Okay, that's when the award was started. Next, when was the Central University of Maharashtra Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalay? Let me just pick up the highlight here. When was it established? So it was established in the year 1997. Okay, 1997 में कैसे establish हुई थी? ज़्यादातर सारे universities establish होते थे through the Act of Parliament. Parliament Act pass करती थी और फिर university establish होती थी, ठीक है? So this university also was established through the Act of Parliament in the year 1997. Okay. When were Elephanta caves? ये हमने पढ़ा था. महाराष्ट्र के 5 ऐसे साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर आते हैं और एलिफेंटा केव्स जो हैं वो भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर आते हैं. तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन इनको कब दिया गया था? तो 1970s में काफ़ी ज़्यादा काम चला था, रेनोवेशन चला था इन केव्स का, जो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, और फिर फाइनली 1987 में जाके उनको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, क्यों? बिकॉज दे होल्ड अ वास्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, या सो व्हेन वाज विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको लेटर ऑन इट वाज नेम्ड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. सो व्हेन वाज इट रीनेम्ड, या व्हेन वाज द नेम चेंज्ड? सो इन 1996 विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि जब कंस्ट्रक्ट हुआ था तब ओरिजिनली विक्टोरिया टर्मिनस कहलाता था, लेटर ऑन 1996 में इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया? द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. ओके, and it's in Mumbai. Next, in which year was Bombay renamed as Mumbai? So Mumbai was actually taken after the name of a goddess, that's Mamba Devi, है ना? उनके after it has been renamed as Mumbai. तो कौन से year में हुआ था ये? So it was the government of India officially changed the English name, जो कि बॉम्बे था, it was an English name, British ने दिया था, it was changed to Mumbai in November 1995. Okay, November 1995. This came at the insistence of the Marathi nationalist Shiv Sena party. उन्होंने इंसिस्ट किया था कि दिस नेम चेंज बी डन, और उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली नवंबर 1999 में ये नाम चेंज करके मुंबई रखा. ओके, व्हेन वाज द महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, दैट इज MADC, कॉन्स्टिट्यूटेड? ये कंपनी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2002 बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज अ स्पेशल पर्पस कंपनी. क्या डेवलप करने के लिए? मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट. कहाँ? नागपुर में. पूरा इसका डेवलपमेंट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था. कब बनाया गया था? अगेन 2002 में. ओके, किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. When was Mumbai Indians, a franchisee cricket team based in Mumbai, founded? Mumbai Indians we all know,
IPL की जो एक टीम है, इट्स मुंबई इंडियंस, तो ये कब फाउंड की गई थी? इट वॉज इन 2008. ठीक है. When was the last कुंभ मेला held in नासिक? तो कुंभ मेला नासिक में हर 12-12 साल में होता है, तो लास्ट कब हुआ था? 2015 में हुआ था. ठीक है. 1980, 1992, 2003, 2015 और अब नेक्स्ट 12 साल बाद 2027 में होगा. कहाँ पे होता है ये? वेरी वेरी फेमस मेला. और ये कहावत भी बोलते हैं, काफ़ी सारे मूवीज़ में भी सुनी होगी कि कुंभ के बिछड़े हुए लोग लगते हैं. मतलब बहुत लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़, इट अट्रैक्ट्स द मेला. बहुत मतलब एकदम दुनिया भर के लोग वहाँ पे जाते हैं टू एक्सपीरियंस इट बिकॉज इट ओनली हैपन्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट कब होने वाला है? 2027 में. और लास्ट कब हुआ था? 2015 में. Next, when was the Indian Institute of Management, that is IIM Nagpur, established? It was established in the year 2015. And it is one of the 20 IIMs that are presently there in India. ठीक है. उनमें total 20 थे उस टाइम पे, और उन 20 में से one was IIM Nagpur as well, which was established या founded in the year 2015. Next, when did the 14th Assembly elections take place in Maharashtra? So they took place in the year 2019. Maharashtra Legislative Assembly elections took place. कब से कब तक हुए थे ये? 21 अक्टूबर बेसिकली से स्टार्ट हुए थे, और 288 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होकर आए थे. ठीक है. 288 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे. महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे? 2019 में. हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? तो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कितने मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे, तो उतनी ही सीट्स हैं. 288 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन अटेंड किया था उनको याद होगा कि सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बट सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होती हैं. तो इंडिया के सिर्फ 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, एंड महाराष्ट्र इज वन ऑफ देम. ठीक है. A very important tidbit to remember. Which is the highest award in Indian cinema given annually हर साल by the government of India for lifetime contribution? So it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा या फिल्म मेकर्स की फील्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड जिसको माना जाता है, दैट्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ठीक है. एंड इट्स इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा एंड इट इज़ गिवन एनुअली. और कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देती है. ठीक है. फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन. बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बट द बिगेस्ट वन इज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन. एक तो एक्टर को जो मिलता है, और एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल. ठीक है. दीज टू आर द बिगेस्ट रिकग्नाइज्ड वंस. उसके अलावा बेस्ट फिल्म, द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये सब के भी अवार्ड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अंडर दिए जाते हैं. When was Armed Forces Medical College established? So it was established in the year 1948. ठीक है. And it was famous for its graduate wing, जो कि 1962 में इनॉग्रेट किया गया था by श्री V.K. कृष्ण मेनन. Who was the then, उस टाइम पे हमने लिस्ट जो देखी थी उसमें 1962 के टाइम he was the डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. उन्होंने ही इस विंग को इनॉग्रेट किया था. What is the height of Rajabai clock tower? So it's 85 meters. And where is this tower? This tower is in South Mumbai. ठीक है. How many percentage of share does Maharashtra contribute to the national economy of India GDP? So 15%. जो इंडिया का GDP है उसका 15% का जो शेयर है वो महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. टू द नेशनल इकोनॉमी, इंडिया की जो जीडीपी है उसका 15% जो है वो महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. एंड महाराष्ट्र इज सेकेंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट इन इंडिया, दैट इज, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट. ठीक है. व्हेन वाज बॉम्बे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन on 14th August 1862. The High Court of Judicature at Fort William was formally opened on 1st July 1862 with Sir Barnes Peacock as its first Chief Justice. क्योंकि ब्रिटिश एरा के टाइम तक कोई ब्रिटिश ही चीफ जस्टिस रहेगा, so it was Sir Barnes Peacock. When did the first passenger train in India run?
सो द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे गई थी और वो कब चली थी? 1853 में। ठीक है, बोरी बंदर जो मुंबई में बोरी बंदर है वहां से लेके ठाणे तक गई थी एंड कब चली थी ये? 1853 में। 3:30 PM मतलब 3:30 बजे ये स्टार्ट हुई थी और 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया था। ओके, so that is all for today's session of Maharashtra related GK. We'll meet again in the next section. Till then, see you, bye bye, have an amazing day.